Good afternoon, everyone. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Uh, Others are still joining in. Let's wait for 2 minutes and then we'll start. Okay, so now I'm locking the meeting. No one else will be allowed to join in now. Muting all. And now I'm going to unmute a few. Anshika, unmuted. Hello, Anshika. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. Arshit, unmuted. Hello, Arshit. Good afternoon, sir. Good afternoon. Then I still see some participants with fake names. I am removing them. Just give me 1 or 2 minutes to do all this. It's very important to carry on an undisturbed session. Galaxy tab, Galaxy J7. I'm removing these. You all should enter with your real names. I told you. Daud Ibrahim bhi hai. Very good. Removed. Tanya, unmuted. Good afternoon, Tanya. Good afternoon, sir. Vanshita, unmuted. Good afternoon, Vanshita. Good afternoon, sir. And who else? Saksham, where are you? I'm not able to see you. Saksham. Okay, Dia also unmuted. Good afternoon, Dia. Good afternoon, sir. So shall we begin now? These 5 students Yes. that are unmuted, whenever I ask something, I'm expecting a response from them on behalf of all. Okay, sir. Okay, So sir. shall we begin? Yes, Yes, sir. sir. Okay, good. In class 11th in business studies, you all have learned what is business, what are the different types of business forms, and how to start various types of business, various forms of business, right? Yes, So now, sir. now Yes, sir. yes, so now in class 12th, what we will learn is business start तो हो गया, अब उसे manage कैसे करना है? Because starting business, no doubt, is a difficult thing. But once you have started the business, managing it is even more difficult.
You must have noticed कई बड़े बड़े शोरूम खुलते हैं या कंपनीज खुलती हैं, कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद बंद हो जाती है. क्यों? क्योंकि ठीक से मैनेज नहीं हो पाई. You must also have noticed some examples जहां पर बहुत छोटे स्केल से किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ ही साल में बहुत एक्सपैंड कर लिया, बहुत ग्रो कर गया. Why? Very good management. So how to manage a business well, that we are going to learn throughout class 12th. So class 12 syllabus of business studies is a mini MBA, you can say, right? You all will become very good managers after going through this course. Certain tips: whatever we study in management, you'll be able to learn it better if you assume yourself as a manager. Whenever we are discussing any concept, assume you are a manager in some big company or you are an owner of a business. Then understand those concepts. They will seem more relevant to you, and you will be able to apply them properly in real life later on. Second thing, whatever we study in management, how to manage a business is not very different from how to manage our life. अपनी लाइफ में जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो स्टडीज हैं, चाहे वो करियर है, चाहे वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं, चाहे रिलेशनशिप्स हैं, all these need to be managed well. Do you agree? Yes, Yes, sir. sir. So जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज में, मैनेजमेंट में, अप्लाई देम इन ऑल योर एक्टिविटीज इन योर डेली लाइफ, एंड इफ यू डू, you will lead a very successful, very happy life. Okay, so management we'll learn in detail throughout the session. One of the chapters in our book, third chapter in the book, is business environment. Now in order to Excuse manage, me, sir. yeah, All the students in the group are asking if you can unlock the room for some time. no, I cannot, because people keep joining in late. Then because the new joinees, they are unmuted, then I have to mute them again, so it keeps creating disturbance. Okay. So those who are not able to join, you can share the details with them later on. Okay, sir. Okay, or if the recording option is there in your system, you can record and then show it to them later, Okay, sir. right? And plus I have removed some students who had entered with fake names despite being told not to do so, तो उन्हें remove किया है, right? Okay, so let's continue. तो business को मैनेज करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है. बिजनेस एनवायरनमेंट का मेंशन हमें हर चैप्टर में मिलेगा, स्टार्टिंग विद फर्स्ट चैप्टर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are going to start with business environment, that is the third chapter in our book. ठीक है, ये बीच बीच में थोड़ी सी साउंड्स आ रही हैं किसी की, प्लीज डोंट टच योर डिवाइसेस. Okay, so we'll be beginning with third chapter in the book, that is Business environment. Business environment. yes, business environment. Now what do we mean by the term environment? Anyone? Surroundings. Surroundings, very good. This is Dia. Dia. Dia, tell me, what are your surroundings right now, wherever you are sitting? So my room, my bed, almirah, Yeah, your bed, your laptop, maybe so phone. phone. Okay, so these are your surroundings, your environment, right? So similarly, Yes, sir. I am sitting in front of my laptop, I have a telephone nearby, I have a water bottle nearby, I have a table, I have a chair, right? So these are my surroundings.
this is my environment. So business environment means surroundings of business, Business. right? Business. Are you able to see this whiteboard? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Let's say we have a business firm, right? Now tell me one by one what all can be there in surroundings of a business firm. The machines. Machines, okay. So we can say The work. physical resources, Human resources. physical resources, okay. Just a second. Yeah, physical resources, human resources, right? Human resources. Right. Employees, owners, these will come in human resources. What else? Canteen. Okay. Physical resources में ले सकते हैं उसे. Then apart from its resources, now let's come to factors outside the business firm. Debtors. Creditors. Creditors. Very good. Debtors है तो creditors भी हो गई. The investors. Very good. Creditors. I cannot match up your speed of speaking, so please excuse me for that. Customers. Investors. Okay. Bank. Very good. Customers. Yes. Customers. Then we have bank. Bank. Bank हो गया. Yes. Anything else? Suppliers. Customers का opposite क्या होगा? Suppliers. Suppliers. Yes. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम मिस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स. Yes. ठीक है. प्लस देयर कैन बी मैनी अदर्स. अच्छा, इसके अलावा अगर गवर्नमेंट लॉज में कोई चेंजेस कर देती है, ठीक है, राइट नाउ वी आर लिविंग इन अ लॉकडाउन, ठीक है. Yes, तो sir. ये कैसा फैक्टर है? एक लीगल फैक्टर है. Yes, sir. गवर्नमेंट लॉ में कोई चेंजेस कर देती है तो वो सारा आ जाता है हमारा लीगल एनवायरनमेंट, लीगल फैक्टर्स. ठीक है. देन कई बार किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है एकदम से, किसी प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से कम हो जाती है. आजकल कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी हुई है? Sanitizers. Essential वेरी products. गुड. Food. सैनिटाइजर्स, देन मास्क, है ना. बिकॉज ऑफ दिस Food कोरोना grains. वायरस स्प्रेड, इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी हुई है. बाकी मोस्टली प्रोडक्ट्स की डिमांड कम है क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है, जा ही नहीं सकते खरीदने घर से बाहर. ऑनलाइन डिलीवरीज भी बंद है. ठीक है. सो दिस ऑल कम्स अंडर विच एनवायरनमेंट? Social environment. Social. Social environment. नहीं, गलत लिख दिया था मैंने और तुम लोगों ने वही बोल दिया. डिमांड सप्लाई किस में पढ़ते हो? Economic Economics. environment. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा जब दिवाली आती है, जब होली आती है, कोई फेस्टिवल आता है, ईद आती है, तो कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, कुछ की कम हो जाती है. होता है ऐसा? Yes, sir. अभी नवरात्रे चल रहे हैं, Yes, sir. नवरात्रों में कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे Sir. Oh. Sweets, maybe. स्वीट्स. यस. गिफ्ट्स. दिवाली में, होली में गिफ्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, गिफ्ट आइटम्स की, स्वीट्स की. ठीक है. और नवरात्रों में स्पेशली किस चीज की डिमांड कम हो जाती है? Sir, onion. वेरी गुड. अनियन, गार्लिक, राइट. नॉन वेजिटेरियन फूड. तो ये सब फैक्टर्स किस में आते हैं? ये सब आते हैं सोशल एनवायरनमेंट. Seasonal. इसे हम कहते हैं सोशल एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के स्पेलिंग ध्यान रखना. इट्स रिटन एनवायरनमेंट बट प्रोनाउंस्ड एनवायरनमेंट. ठीक है. कई बार स्टूडेंट्स लिखने में स्पेलिंग में गलती कर देते हैं प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से. सो सोशल एनवायरनमेंट. एक
ऐसी कुछ चीज होती है जो बड़े रैपिडली चेंज होती रहती है, वो क्या है? Season. ओके। मोबाइल फोन्स देखो आप, नए नए मॉडल आते रहते हैं, टेलीविजन्स के नए नए मॉडल आते रहते हैं, कार्स के नए मॉडल्स आते रहते हैं, तो इन सब में क्या चेंज होता रहता है? Technology. वेरी गुड, टेक्नोलॉजी। सो दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल Environment. मेरे से कहीं पर टाइपिंग में या बोलने में कहीं पे भी मिस्टेक हो जाए तो प्लीज करेक्ट मी, ठीक है? बिकॉज आई एम मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कहीं पे सर गलती। लीगल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। अच्छा, Yes, एक sir. बड़ा स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट होता है इलेक्शंस जब आते हैं, ठीक है? तो हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ ना कुछ बोलती है, कुछ ना कुछ प्रोमिसेस करती है लोगों को, वो सब कौन से एनवायरनमेंट में आएगा? Economical environment. नहीं, और सोचो, हिंट मिला? Political. वेरी गुड, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये फैक्टर्स हैं और बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं इनके अलावा। कुछ मेन जो हमने डिस्कस किए अभी वो हमने नोट कर लिए, ठीक है। नाउ यू टेल मी, अब अगर आप ध्यान से देखो, मैंने पर्पसफुली कुछ फैक्टर्स बिजनेस फर्म के बिल्कुल पास पास लिखे हैं, यस सर। ठीक है। Yes, sir. दिस इज आवर बिजनेस फर्म। कुछ फैक्टर्स बिल्कुल इसके आसपास लिखे हैं और कुछ फैक्टर्स इससे थोड़ा दूर लिखे हैं। इनको जरा ध्यान Yes, से sir. देखो एंड टेल मी व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाई सो? सर बिजनेस जो पास में लिखे हैं उन पर डिपेंड करता है। ओके, इन पर डिपेंड नहीं करता, लीगल लॉस पे, डिमांड सप्लाई पे, टेक्नोलॉजी पे? थिंक, थोड़ा जोर डालो दिमाग पे, समझ आ जाएगा। सर इन डे टू डे लाइफ में हेल्प करते हैं बिजनेस की। वेरी गुड। ये जो सर्कल के अंदर वाले हैं, ये इनसे बिजनेस का ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर इंटरेक्शन होता है, रेगुलर बेसिस पर, Mm. ठीक है। और Yes, ये sir. जो बाहर लिखे हुए हैं, इनमें जब जब कोई चेंज आता है तब उसका इफेक्ट होता है। एक ये यस सर। डिफरेंस हुआ। और कुछ? ये अंदर जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं फर्म के पास में, डोंट हेजिटेट इन सेइंग एनीथिंग, डोंट वरी इफ यू आर रॉन्ग, जो माइंड में आता है वो बोलो, ठीक है। तो some people are raising hand, but I am sorry, I'll not be able to attend anyone. You can ask your doubts at the end of the session, or you can send your message to these 5, they can ask on your behalf. And third option, at the end of the session you can ask your doubts in the WhatsApp group, ठीक है। क्योंकि अगर ये मैनेज करते रहेंगे बीच बीच में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक और डिफरेंस जो है इनमें, सर्कल के अंदर जो फैक्टर्स लिखे हैं इनमें और जो बाहर हैं इनमें, ध्यान से देखो तो ये फैक्टर्स जो हैं, कस्टमर, सप्लायर, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, हर बिजनेस फर्म के अलग अलग हो सकते हैं, यस सर। राइट। सभी Yes, हर sir. बिजनेस फर्म के अपने कुछ कस्टमर्स होंगे, कुछ सप्लायर्स होंगे, कोई बैंकर होगा उनका, तो जरूरी नहीं है बाकी फर्म्स के भी सेम हो। तो दीज आर स्पेसिफिक टू अ बिजनेस फर्म, इसलिए हम इनको कहते हैं स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। इन सबको मिला के जो सर्कल के अंदर हैं, दीज ऑल आर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, Specific environment. ठीक है। ये जो बाहर हमने फैक्टर्स लिखे हैं, ये एक तो
इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, स्पेसिफिक वाले डायरेक्टली करते हैं। दूसरा, Yes, sir. स्पेसिफिक वाले स्पेसिफिक होते हैं, हर बिजनेस फॉर्म के लिए अलग होंगे, सेपरेट होंगे, यूनिक होंगे। लेकिन ये जो Yes. बाहर फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ये एक तो They इनडायरेक्टली are same. फॉर्म्स को, दूसरा ये जनरल होते हैं, सभी फॉर्म्स को एक साथ अफेक्ट करते हैं। Yes, sir. ठीक है, मोबाइल फोन की Yes, sir. टेक्नोलॉजी में अगर कोई चेंज आ गया तो जितने मोबाइल फोन्स हैं, जितनी भी मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं, दे विल अफेक्ट ऑल दोस कंपनीज एट द सेम टाइम, not a specific firm. So these factors, they are called, what should they be called? Specific का opposite? Unspecific. Unspecific. और कुछ? Unspecific. General environment. General. Yeah, these are general environment factors. इसमें 5 मेन, हमने ये देखो एक मिस्टेक हुई थी, तुम लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया या पॉइंट आउट नहीं किया, एनवायरनमेंट के स्पेलिंग या लीगल में गलत है, ये ठीक कर लेना। इसमें अब एडिट की तो ऑप्शन मैंने बताया था सर, मेरे पास नहीं आई थी। MENT कर लेना उसे, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मिल रही है उसको एडिट करने की, इसको करेक्ट कर लेना। ओके, तो these are called general environment factors. जनरल एनवायरनमेंट में 5 मेन फैक्टर्स हैं हमारे कोर्स में, एज वी हैव रिटन: लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड Technological. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एक्सीलेंट। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हैविंग एनी डाउट इन दिस? No, sir. चलो ये व्हाइट बोर्ड हटाते हैं आप, No, sir. और अब और कुछ लेकर आते हैं। Yeah. So now we have discussed what is business environment. Now I am reading out the definition. ये जो भी मैं स्क्रीन पे अब शेयर कर रहा हूँ नोट्स, ये ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। इनमें से मेन डेफिनेशंस आपने लिख ली होंगी, ठीक है, ये नोट्स आपने नोटबुक्स में लिख लिए होंगे। अगर किसी ने नहीं लिखे हैं तो अब लिख लेना, डू पॉजिटिवली। तो मैं इसलिए धीरे धीरे डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग यू हैव ऑलरेडी रिटन दैम, so I am just reading them out. Sir, 12D को भी लिखने हैं ये सारे notes. लिखने चाहिए, बाकी आप रुचिका मैम से एक बार कंफर्म कर लेना, मेरी ओपिनियन में लिखने चाहिए। यस, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट। Okay, sir. या कुछ कह रहे हो? ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट refers to all individuals, institutions and forces which affect business. I repeat, all individuals, इसमें कस्टमर भी आ गए, एम्प्लॉइज भी आ गए, सप्लायर भी आ गए, सब इंडिविजुअल्स। इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, एमसीडी, टैक्स डिपार्टमेंट, एंड ऑल अदर फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, सब जो भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, दे आर पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। Some of these factors have direct influence over the business, while others may operate indirectly. Some are specific, others are General. Unspecific. General. general. Very good. यहाँ तक clear? Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. जो बिजनेस के प्लान्स बना रहे होते हैं अपने बिजनेस के लिए, पॉलिसीज बना रहे होते हैं, तो हमें इन एनवायरमेंटल कंडीशंस को फोरकास्ट करना पहले से बहुत जरूरी होता है। ठीक है। नाउ फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। किसी भी चीज के फीचर्स अगर हमने एनलिस्ट करने हो तो उसकी डेफिनेशन के एक एक वर्ड को आप एक्सपेंड कर दो, वो उसके फीचर्स बन जाते हैं जनरली। ठीक है। पहला बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर, इट इज डायनामिक। डायनामिक मींस So it keeps changing. यस, डायनामिक मींस व्हिच कीप्स चेंजिंग। Keep आज कुछ changing. और सिचुएशन है, कल कुछ और सिचुएशन हो सकती है। आज कुछ लॉज हैं, कल को लॉज चेंज हो सकते हैं, कल को टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, डिमांड सप्लाई चेंज हो सकती है। तो वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स Excuse me, sir. continuously.
Yes, any doubt? Okay. Excuse Sir, me, if sir. forces या बोलो. Sir, Yes, पूछो क्या पूछना है. सर मेरा डाउट हाँ. है कि आपने बोला कि बिजनेस को ये सब कुछ फोरकास्ट करने चाहिए द एनवायरनमेंट. जी जी. तो आप जो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं आप उनको फोरकास्ट कैसे कर सकते हो? वो तो कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, कोई भी लीगल लॉ निकाल सकते हैं. बिल्कुल निकाल सकते हैं. जो एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं पहले हमें उन्हें स्टडी करना चाहिए. एग्जिस्टिंग लॉज क्या हैं, एग्जिस्टिंग डिमांड सप्लाई पोजीशन क्या है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी क्या है, वो हम स्टडी कर सकते हैं. yes sir. यस सर. तो वो करना चाहिए पहली चीज. दूसरी चीज, जैसे ये कोरोना वायरस स्प्रेड होना शुरू हुआ था हमें फरवरी एंड में पता चल गया था. ठीक है. तो यस. लॉकडाउन हो सकता है. जो समझदार लोग हैं, जो विजनरी हैं, वो ये समझ लेंगे कि लॉकडाउन हो सकता है. तो वो उसके अकॉर्डिंगली पहले से कुछ प्रेपरेशंस कर लेंगे उसके लिए. जो मास्क मेकिंग फर्म्स हैं, जो सैनिटाइजर मेकर्स थे, उनमें से कईयों ने अपनी प्रोडक्शन डबल ट्रिपल कर दी थी मार्च बिगनिंग में, क्योंकि उन्हें पता चल रहा था कि सिचुएशन जिस तरह की आ रही है डिमांड बढ़ने वाली है. ठीक है. तो इस तरह से यस सर. प्रिवेलिंग सिचुएशन को समझते हुए कई बार हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. बट सर डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तो वो तो बहुत ऑल ऑफ द सडन हुआ था. इसका आइडिया, कई चीजें हैं जिनका हम आइडिया नहीं लगा सकते. दे आर सडन. ठीक है. तो उनका आइडिया नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते. लेकिन जिनका आइडिया लगा सकते हैं एटलीस्ट उनका हमें थोड़ा सा सोच के चलना चाहिए. जैसे हम सबको पता है कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है. ठीक है. तो कभी भी बैन हो सकता है सभी फॉर्म्स में. तो जो लोग प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, समझदारी ये होगी कि वो पहले से ही किसी दूसरे प्रोडक्ट्स में शिफ्ट कर जाएं. वेट ना करें कि अचानक कभी सारे फॉर्म्स में ये बैन हो जाए. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके सर, थैंक यू. Right? Dynamic clear? It keeps changing. In fact, there is a saying that change is the only constant thing in the world. Next feature, uncertain. Change तो होता है, लेकिन कब क्या चेंज हो जाएगा किसी को नहीं मालूम. वो एक सॉन्ग है ना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. So what Yes, sir. will happen in future, we do not know. There is uncertainty. We can only estimate, we cannot say for sure कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन. और ये जो अनसर्टेनिटी वाला फीचर है, ये एक बिजनेस के फीचर को रेस करता है. विच वन कैन यू आइडेंटिफाई? बिजनेस के फीचर्स पढ़े होंगे आपने क्लास 11th में. Sir, uncertainty of risk, uncertainty of return. जिसे हम कहते हैं रिस्क. ठीक है. बिजनेस में रिस्क होता है. रिस्क किस बात का होता है कि लॉस भी हो सकता है. यस सर. That risk is because the environment is uncertain. Had everything been certain, there would have been no risk at all. Risk Yes, sir. arises because there is uncertainty. Uncertainty. Right. Third feature, it is totality of external forces. जितने भी बिजनेस फर्म के आसपास फोर्सेस हैं, चाहे वो सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, लीगल फैक्टर्स हैं, इन सब का सम, सबका टोटल, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. ओके. Specific, next feature, specific and general forces. Some forces are specific, as we discussed. They are unique for every firm and vary from firm to firm. Whereas others are general, means they affect all the firms, or we can say many firms of a particular type at the same time. General में कौन-कौन से आते हैं? Legal environment. Legal, Technological, legal, political, social and economic. Very good.
Next feature, interrelated. All the components of business environment are interrelated. ये और मजेदार बात है, किसी एक फैक्टर में चेंज होता है तो उसका इफेक्ट सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं रहता, इट अफेक्ट्स अदर फैक्टर्स आल्सो. टेक एनी एग्जांपल. सर डिमांड कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी. वेरी गुड. कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई, इस एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, हर्षित ने कहा ना. यस सर. या तो अर्शित के एग्जांपल से कंटिन्यू करते हैं. किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज थी उनका बिजनेस कम हो गया. Yes, sir. उनमें Yes, sir. जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे कुछ अनएम्प्लॉयड हो गए. अनएम्प्लॉयमेंट होने से लोगों का इनकम लेवल कम हो गया. अभी तक हम Yes, sir. देख रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में. ठीक है, अब वो अनएम्प्लॉय हो गए तो हो सकता है गवर्नमेंट लॉ में कुछ चेंज कर दे जिसके थ्रू उन्हें और कोई जॉब मिल पाए. तो ये Yes, लीगल sir. फैक्टर पे इफेक्ट आ गया. Legal environment. हो सकता है कंपनीज कॉस्ट कटिंग करने के लिए, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, ज्यादा मशीन्स यूज करने लगे और लेबर को कम कर दें. Yes, sir. तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी आ गई, Technological environment. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया. ठीक है, तो इस तरह से किसी एक एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो उसका इफेक्ट बाकी एनवायरनमेंट्स में भी आता जाता है. राइट. डीमोनेटाइजेशन की आपने बात की थी, उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं. डीमोनेटाइजेशन हुआ एक गवर्नमेंट का डिसीजन, एक लीगल Yes, sir. लीगल एनवायरनमेंट में आ गया. ठीक है, उसकी वजह से नई नई डिजिटल पेमेंट्स की एप्स आ गई. Yes, sir. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए. मनी सप्लाई कुछ टाइम के लिए इकोनॉमी में बहुत कम हो गई क्योंकि करेंसी कम हो गई. 500 के Yes, sir. 1000 के नोट जो पुराने थे वो चले गए. तो बंद. काफी टाइम तक मनी सप्लाई कम हो गई, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्ट हो गया. ठीक है, Yes, sir. लोग काफी टाइम तक लाइनों में लगे रहे एटीएम्स के बाहर. देयर सोशल लाइफ वाज डिस्टर्ब्ड, सोशल एनवायरनमेंट आ गया. Yes, sir. So in this way we see Yes, sir. that all the environmental factors are interrelated. Related. Next feature, business environment is complex. It is complicated. क्यों complicated है? क्योंकि एक तो uncertain है, पता नहीं कब क्या होगा. दूसरा, चेंज होता रहता है, डायनामिक है, चेंज होता रहता है, लेकिन क्या चेंज होगा वो नहीं मालूम. तीसरा, एक जगह चेंज होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे फैक्टर्स पे भी आ जाता है. Because of all these things, business environment is very complex, it is very complicated, so one has to understand it very cautiously. Clear? Yes, sir. Next feature, relativity. Business environment is relative. Relative means it, यहाँ पे relative का मतलब है it varies From place- firm to firm. Yeah, from firm to firm, from place to place. For example, अगर आप एक business, let us say आप एक garments का showroom खोलना चाहते हो, अगर वो आप रोहिणी में खोलते हो तो आपको एक अलग तरह का environment मिलेगा. अगर वही showroom आप खोलते हो साउथ एक्स में तो एक different type का आपको environment मिलेगा. अलग एक इकोनॉमिक सोशल क्लास के कस्टमर्स मिलेंगे, सप्लायर्स मिलेंगे. सेम बिजनेस Yes, अगर sir. आप खेलते हो किसी लेट अस से यूपी के या बिहार के विलेज में तो वहां पे एकदम एंटायरली डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलेगा. सेम बिजनेस आप खोलो टोक्यो में तो एक अलग एनवायरनमेंट होगा, वहां पे कुछ अलग लॉज होंगे, वहां की इकोनॉमिक पॉलिसीज कुछ अलग होंगी. सेम बिजनेस आप खोलो न्यूयॉर्क में तो अलग एनवायरनमेंट होगा. लाइक दिस Yes, sir. business environment varies from place to place, from country to country, from region to region. Region. Relativity. Clear?
Yes, Any sir. doubt? Yes, sir. Any doubt in features, anyone? No, sir. No, No, sir. sir. Okay, very good. So we move on to next heading, that is dimensions of business environment. There are two main dimensions which we already discussed, specific and general. Specific environment comprises of factors which affect the business directly and are specific to the firm. General environment comprises of factors which are common for all business firms in a particular category. The important now general environment components in detail are in our course. So we'll go in details of general environment now. First dimension is political environment. Environment. Comprises of political stability, government's ideology, government intervention, politicization of business issues, etc. Now let's discuss its components one by one. First is political stability. What do we mean by stability? Consistency. कंसिस्टेंसी. आपके सामने कोई टेबल रखी होगी या जिस पे आप बैठे हो वो चेयर होगी. Yes, sir. उस टेबल या उस चेयर की अगर एक लेग काट दी जाए क्या होगा? गिर Unstable. जाएंगे. गिर जाएंगे Unstable हो जाएगी. क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगी. तो स्टेबल का मतलब जो Yes. टिकी हुई है. ठीक है. तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? When a government is stable means the same party will continue in rule for full period. अगर किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिली हुई है, जैसे करंटली बीजेपी को मिली हुई है सेंटर में, Yes. स्टेट में आम आदमी पार्टी को मिली हुई है, क्लियर में, वो तो एस्टाउंडिंग मेजॉरिटी है. ठीक है. तो पता है हमें कि ये गवर्नमेंट एटलीस्ट 5 साल तक रहेगी, सेम गवर्नमेंट रहेगी. सेम गवर्नमेंट रहेगी तो इससे बिजनेस को फायदा होगा, नुकसान होगा? सर फायदा होगा. फायदा होगा. कैसे? क्योंकि वो Stability उनकी फ्री होगी तो उनकी जो मैनेजमेंट है वो सही हो जाएगी उस पॉलिसीज के हिसाब से. यस यस. एनीथिंग एल्स? जो पॉलिसीज, जो प्लान्स हम अपने बिजनेस के लिए बनाएंगे, गवर्नमेंट की करंट पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए, we know that these policies are going to be continued for at least 5 years, so we will not need to change our plans or policies frequently. Yes, sir. ठीक है. तो Yes, political stability is good for business. On the other hand, अगर instability होती है, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस समझनी हो लाइफ में, तो उसकी एब्सेंस को विजुअलाइज करो, आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एब्सेंस है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. अगर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है, गवर्नमेंट कभी भी चेंज हो सकती है. तो आज हम जो बिजनेस के लिए प्लान्स बना रहे हैं, हो सकता है कुछ टाइम बाद दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, हमें वो सारे चेंज करने पड़ जाए उनकी न्यू पॉलिसीज के हिसाब से. फिर और Yes, कोई sir. गवर्नमेंट आ जाए और किसी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, अगेन हमें चेंज करने पड़ जाए. सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी is bad for business. Clear है ये point? Yes, sir. Yes, sir. Second, government's ideology. हर पार्टी की अपनी एक डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है. ठीक है. One, without naming any party, let us say पार्टी X की आइडियोलॉजी है कि वो फॉरेन कंपनीज को प्रेफर करते हैं, आओ हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो. पार्टी बी है Yes, sir. जो कहती है कि नहीं, स्वदेशी, हम फॉरेन कंपनीज को डिस्करेज करेंगे, अपने कंट्री लोकल कंपनीज को, अपनी इंडिजिनस कंपनीज को Encourage. प्रमोट करेंगे. ठीक है. तो एक पार्टी अगर गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है तो पॉलिसीज कंट्री की कुछ और हो जाएंगी. दूसरी पार्टी अगर गवर्नमेंट पावर में आ जाती है तो पॉलिसीज अलग हो जाएंगी. दिस इज हाउ द आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग द कंट्री affects business. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir, policy change business firm में drastic changes ला सकती है. बिल्कुल ला सकती है.
अगर गवर्नमेंट कह दे कि भाई सपोज एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई, उन्होंने कहा जैसे मैंने एग्जांपल दिया था प्लास्टिक के सारे प्रोडक्ट्स कल से बैन, आ गया ड्रास्टिक चेंज। यस सर। डीमोनेटाइजेशन था वो एक ड्रास्टिक चेंज था सडनली। ठीक है, तो यस Okay, ला sir. सकती है। गवर्नमेंट, थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन। Government's intervention means government's interference in business. Why should a government interfere in business? Generally कहा जाता है government has no business to be in business. Do you agree? Yes sir. सर Why? नहीं मतलब So अगर हमारी without पॉलिसी government interference, there will be no laws, there will be no discipline. नहीं, लॉस तो हो लेकिन गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर ना करे। एक बार जो लॉ बन गए चलने दो। अगर सारी बिजनेस फर्म्स सेंसिबल हो जाएं, सिंसियर हो जाएं। देखो अभी ये इस सेशन में मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को म्यूट किया हुआ है, सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स को अनम्यूट किया हुआ है रैंडमली। क्यों? क्योंकि पिछला सेशन हमने लिया था सबको अनम्यूट करके, उसमें डिस्टरबेंसेस आ रही थी बीच बीच में। ठीक है, हमने Yes, sir. स्क्रिबलिंग का एक टूल होता है, इसमें उसको कैसे डिसेबल करते हैं वो मुझे नहीं पता था, उसके बाद पता चला। ठीक है, तो उसका मिसयूज कर रहे थे कोई 1-2 स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि सब सिंसियर नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ा, रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी, बहुत से पार्टिसिपेंट्स को म्यूट करना पड़ा, जो फेक नेम से थे उन्हें बाहर करना पड़ा। ठीक है, स्क्रिबलिंग का टूल मुझे डिसेबल करना पड़ा। अगर सारे सिंसियर होते तो मुझे ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आई वुड हैव लव्ड टू हैव टू-वे कम्युनिकेशन विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स, 66, 67 जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे इसमें हैं अभी। लेकिन क्यों करना पड़ा? क्योंकि सब सिंसियर नहीं है, तो ये हो गई मेरी इंटरवेंशन। सिमिलरली अगर बिजनेस, सारी बिजनेस फर्म्स सोशली रिस्पॉन्सिबल वे में एक्ट करें, ना एम्प्लॉइज को परेशान करें, ना कस्टमर्स को परेशान करें, ना एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाएं, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। कुछ बिजनेस मैन या बिजनेस विमेन या कुछ बिजनेस फर्म्स ऐसी होती हैं जो कुछ ऐसा करती हैं जो सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है, तो फिर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले डीजल बसेस चलती थी, तो बहुत पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा था, लोग कंप्लेंट कर रहे थे, लेकिन ये बस ऑपरेटर्स कुछ नहीं कर रहे थे। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे, सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन पे उन्हें सीएनजी पे शिफ्ट किया गया। फिर गवर्नमेंट ने भी इंटरवेंशन की। जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो गवर्नमेंट ने भी फिर ऑर्डर निकाल दिया कि भाई बंद करो ये डीजल बसेस, इनको सबको सीएनजी पे कन्वर्ट करो। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अभी ये कोरोना वायरस वाला एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। काफी टाइम से गवर्नमेंट कह रही थी सोशल डिस्टेंसिंग करो, वर्क फ्रॉम होम करो, बट some were following it, some were not. So ultimately realizing the situation, government announced lockdown, intervention. Now we are working from home, I'm teaching you from home, you are learning at home, right? So this is government intervention. So when business firms do not act responsibly themselves, then the government needs to interfere. अगर बिजनेस फर्म्स चाहती हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, तो उन्हें खुद रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। क्लियर? सर अगर बिजनेस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बिजनेस फर्म बहुत अफेक्ट हो रहा है, तो क्या वो लोग अपोज कर सकते हैं उस रिस्ट्रिक्शन को? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई जेन्युइन रीजन है तो वो अपने रीजंस दे सकते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट अपने रीजंस देगी उन रिस्ट्रिक्शंस के, फिर मे बी दोनों की डिस्कशन से कोई मिडल पाथ निकल आए। ओके, मे बी वो जो Excuse me, sir. पहले इररिस्पॉन्सिबल थी, अब वो एश्योर करें कि हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें और गवर्नमेंट अपनी रिस्ट्रिक्शंस हटा दे।
Okay, sir. right? एक्सक्यूज मी सर, Yeah. सर जैसे अगर बिजनेस सर जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो सर हो सकता है कि उसे कोई नया लॉ बनाना पड़ जाए बिल्कुल हो सकता है। सर। सर तो फिर वो लीगल एनवायरनमेंट में नहीं आना चाहिए? अगर नया लॉ बन गया तो लीगल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। अगर लॉ नहीं बना है लेकिन गवर्नमेंट ने वैसे ही ऑर्डर निकाल दिया फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक फर्म्स के लिए, तो वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन में आ जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट इंटरवेंशन सही कह रहे हो तुम, जनरली लीगल एनवायरनमेंट के थ्रू होगी, ठीक है, लेकिन जब तक कोई लॉ चेंज किए बिना वो इंटरवेंशन हो रही है तब तक वो इसमें रहेगा। सर जैसे सीएनजी बसेस वाला था सर, वो तो फिर इंटरवेंशन। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। एक्चुअली इन माय ओपिनियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सिर्फ दो फैक्टर्स आने चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहला, और इंटरनेशनल रिलेशन जो हम डिस्कस करेंगे आगे वो वाला। क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन और गवर्नमेंट्स आइडियोलॉजी जो है ये इकोनॉमिक और लीगल में ज्यादा कवर हो जाते हैं मेरी ओपिनियन में, ठीक है। हमारे सिलेबस में कई जगह ऐसी चीजें आएंगी जहां पर हमें लगेगा कि ये चीज यहाँ पर इतनी फिट नहीं हो रही, ये और कुछ होना चाहिए एक्चुअली, तो वहां पर हम शेयर करेंगे इन बातों को। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जहां भी ऐसा होगा वहां पर मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बता दूंगा उस चीज पे, रियलिटी में कैसा होता है वो भी बता दूंगा। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एनसीईआरटी हमें फॉलो करनी है, तो बिल्कुल हम यही पॉइंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यही लिखना है, इस एनवायरनमेंट के अंडर यही लिखना है। ओके सर। सर जैसे सर सीएनजी बसेस वाला और प्लास्टिक वाला है, सर ये तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन में ही आएगा ना? नहीं जो वो एग्जाम्पल गवर्नमेंट इंटरवेंशन में तब आता अगर गवर्नमेंट ने खुद ही कह दिया होता जितने भी बस ऑपरेटर्स थे कि भाई इसको सीएनजी पे कन्वर्ट कर लो आप जल्दी से जल्दी। लेकिन ये हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद गवर्नमेंट ने भी लॉ चेंज किया, तो इन दोनों रीजन से ये एक्चुअली आ जाता है लीगल एनवायरनमेंट में। सर हम ये सीएनजी बसेस वाला लीगल में लेंगे फिर? अगर हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट का नाम आ गया, अगर गवर्नमेंट के किसी लॉ में चेंज का नाम आ गया या गवर्नमेंट ऑर्डर का नाम आ गया तो लीगल में आ जाएगा। अगर सिंपली आया दैट गवर्नमेंट हैज सेड ask the firms to convert to CNG, then we will categorize it under government's intervention. Okay sir. Right. Next Yes, component under political environment is international relations. अगर हमारी कंट्री के कुछ कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं तो उनके साथ हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा होगा। अगर कुछ कंट्रीज के साथ हमारे टेंस रिलेशंस हैं तो उनके साथ हमारा बिजनेस कम होगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस पे। और अभी ये जो सिचुएशन हम भुगत रहे हैं कोरोना वायरस के स्प्रेड की, दिस इज रिजल्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस विद सर्टेन कंट्रीज, राइट। कितने प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ चाइना से आते हैं, कितना ज्यादा हमारा बिजनेस है चाइना के साथ, उसका 80 to 85। हाँ, तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। यस सर। अभी रिसेंटली G20 समिट हुई, प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया और 20 कंट्रीज के हेड्स ने पार्टिसिपेट किया, वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई 2-3 दिन पहले। उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा ग्लोबलाइजेशन हैज फेल्ड अस। ये जो हम कोरोना वायरस की सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में इतनी भयंकर सिचुएशन देख रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इतना बिजनेस है कंट्रीज के बीच में, गुड्स मूव कर रहे हैं, लोग मूव कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक रीजन से दूसरे रीजन में, इसलिए ये पूरे वर्ल्ड में इतनी फास्ट स्प्रेड हो गया। एनीवेज, सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्लियर एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. Without anyone? No sir. Okay, so we move on No, to sir. next dimension, that is legal environment. Legal environment comprises various laws, government regulations and court decisions.
नोट्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रीन टेक्स्ट से जो भी लिखा हुआ है वो आपने नोट नहीं करना है नोटबुक में। क्यों नोट नहीं करना है? क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। ग्रीन में जो जहाँ कुछ दिया हुआ है वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा, बट दैट इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है, जैसे ये एक लाइन आई ग्रीन में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाली, देख रहे हो आप लोग? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, अब क्यों ये मैंने ग्रीन में लिखा ये डिस्कस करते हैं पहले। जहां भी किसी लॉ की बात आ गई, जहां भी गवर्नमेंट ऑर्डर की बात आ गई, जहां भी किसी कोर्ट के डिसीजन की बात आ गई, तो वो लीगल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। ठीक है, कैन यू टेल मी विच इज द हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी इन आवर कंट्री? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, वेरी गुड। एनीवन एल्स? पार्लियामेंट नहीं है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट है यस सर। या Yes, sir. पार्लियामेंट हो गई लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट्स हो गए जुडिशरी, Judiciary. और थर्ड विंग कौन सा होता है गवर्नमेंट का? लेजिस्लेचर। एक लेजिस्लेचर, दूसरा जुडिशरी, Executive. Executive. यस। Executive. तो इन तीनों में से सुप्रीम कौन सा है? सब हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी कौन सी है? लेजिस्लेचर। Sir, judiciary. नन ऑफ देम। ये तीनों वर्क करते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट भी वर्क करती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जुडिशरी भी एक्ट करती है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जीक्यूटिव भी वर्क करता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नो वन कैन गो और डू एनीथिंग आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द highest legal authority in our country, right? So constitutional Yes. provisions are part of legal environment. ठीक है, constitutional provisions legal environment का part है। 2 साल पहले तक एनसीईआरटी में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दी होती थी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंडर। मैंने इस पर ऑब्जेक्शन रेज की, एनसीईआरटी को लिखा, सीबीएसई को लिखा कि ये तो गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो लीगल एनवायरनमेंट में आनी चाहिए, दैट इज द हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी। तो लास्ट ईयर ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में से पॉइंट हटा दिया गया एनसीईआरटी में, लेकिन लीगल एनवायरनमेंट में अभी भी उन्होंने इसे नहीं डाला है। लेकिन अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आ जाए तो मेरी ओपिनियन में वो लीगल में ही आना चाहिए। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो एवरी बिजनेस, या बोलो। अगर बोर्ड्स में आ जाए तो हमें इसे किस में स्पेसिफाई करना है? बोथ में कैसे? बोर्ड्स में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल उस पे कोई क्वेश्चन हो। लीगल। ओके सर। ठीक है, ऑल्दो एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड आना एक्सपेक्टेड नहीं है, बट आ जाए तो फिर लीगल है वो। ओके सर। ठीक है, every business as well as every individual has to abide by the constitutional provisions. हमें कुछ भी करते हुए ये ध्यान रखना है कि किसी की भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हम वायलेट तो नहीं कर रहे। हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को फुलफिल करना है। ठीक है, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब बुक में जो कंपोनेंट्स इसके दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है वेरियस लॉज, जितने भी लॉ बने हुए हैं, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, और जितने भी हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट, तो वो सारे बिजनेस फर्म्स को ध्यान रखना चाहिए, दे आर फॉलोइंग ऑल दोज लॉज, दे आर नॉट वायलेटिंग एनी ऑफ दीज लॉज। क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रेगुलेशंस। जब गवर्नमेंट कोई ऑर्डर निकालती है, किसी चीज को रेगुलेट करती है, जैसे अभी लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया कौन से शॉप्स खुल सकती हैं, सिर्फ एसेंशियल आइटम्स वाली, कौन सी नहीं खुल सकती, तो ये हो गया गवर्नमेंट रेगुलेशन। ठीक है, कुछ चीजों का मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर देती है या मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है,
जैसे अभी आजकल Maximum गवर्नमेंट retail ने price. सैनिटाइजर्स का, ठीक है, और कुछ आइटम्स का मैक्सिमम प्राइस फिक्स किया हुआ है, तो ये हो गई गवर्नमेंट रेगुलेशंस. Regulation. Every business firm must follow the government regulations, otherwise legal action can be taken against them. Similarly, every business firm must follow all the laws applicable to them, otherwise they will have to face legal consequences, which may include heavy fine, which may include imprisonment, or both, which may also include shutdown of that business by the government. Okay, sir. Third component under legal environment is court decisions. I repeat, whenever any court gives any decision, that decision is binding on all, not just on the parties involved in that case, but on all. ठीक है, सपोज एक फर्म ने, एक एग्जांपल लेते हैं, एक फर्म ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली दैट वी वांट अ रिसेप्शनिस्ट. नाउ रिसेप्शनिस्ट ओनली फीमेल कैंडिडेट्स शुड अप्लाई, उन्होंने ऐड में लिख दिया. ठीक है, अब किसी ने कोर्ट में कंप्लेंट कर दी कि भाई ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कैसे लिख सकते हैं ये ओनली फीमेल शुड अप्लाई. तो कोर्ट ने डिसीजन दिया, यस दिस इज रॉन्ग, यू कैन नॉट राइट एनी सच थिंग इन योर जॉब वैकेंसी एड, यू हैव टू कंसिडर एवरीवन, और जो ज्यादा मेरिट हो जिसकी, उसको आपने चांस देना है. तो ये डिसीजन अब सिर्फ उस फर्म पे अप्लाई नहीं होगा, ये पूरी कंट्री में सभी फर्म्स पे अप्लाई होगा, चाहे डिसीजन मुंबई कोर्ट का आया हो, चाहे दिल्ली कोर्ट का आया हो, चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आया हो, ये सभी जगह एप्लीकेबल होगा. इज माय पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Sir, डिसीजंस आर एज गुड एज लॉज. कोई भी कोर्ट डिसीजन देता है तो उसे सबने फॉलो करना है, अदरवाइज अगेन दे विल हैव टू फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. यस, कोई डाउट है? सर अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन में किसी फर्म को कोई गवर्नमेंट बंद करती है तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके लिए? जी जी जी, उसके प्रोसीजर होते हैं प्रॉपर. गवर्नमेंट ऑर्डर निकालेगी, जनरली ये चीजें कोर्ट के थ्रू होती हैं, या फिर किसी एक्ट में, जैसे कंपनीज एक्ट में लिखा हो कि भाई अगर कोई फर्म इलीगल बिजनेस में जा रही है, पता चला बिजनेस ही इलीगल है, स्मगलिंग कर रहे हैं, तो इमीडिएटली गवर्नमेंट उसको ऑर्डर कर सकती है बंद करो, पूरी कंपनी बंद हो जाएगी, प्लस उसके जो मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं वो सारे जेल में जाएंगे. ओके सर सर. सील भी तो कर देते हैं. हाँ बिल्कुल, सील भी कर सकते हैं. अगर रेजिडेंशियल एरिया में कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, उसे गवर्नमेंट कभी भी सील कर सकती है, क्योंकि वो अलाउड नहीं है. यस सर. ठीक है, तो जो हमारे जितना भी लॉस होता है, अंदर जो भी सामान होता है सर, वो सब मतलब वेस्ट हो जाता है. बिल्कुल. सीलिंग जब होती है तो अगर जो ऑफिसर सील करने आए हैं वो उन पे डिपेंड करता है, दे विल गिव यू सम टाइम कि भाई 1 घंटा दिया, चलो निकाल लो जो सामान निकालना है, फिर सील कर रहे हैं. और कई बार हो सकता है वो टाइम ना दें और वो कहे कि बस खुद निकलो और बस सील कर रहे हैं. तो सर अगर सारा सामान अंदर है, उन्हें नहीं निकालने दिया, तो क्या वो लोग मतलब अपोज कर सकते हैं कि नहीं, हमें हमारा सामान बिल्कुल मतलब? बिल्कुल, कोर्ट्स आर देयर फॉर ऑल दीज थिंग्स. ओके सर. Anyone having any objection with anything in the country can go to a court, file a case, and then the court will decide. ओके सर. Right? ये हो गया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट, और इसके साथ बच गए 4. तो आज का सेशन यही हम एंड करते हैं. ओके सर. Now I am unmuting all for asking your doubts, but behave responsibly. कर दिया. Yes. Any doubts? Anyone? दोबारा कैच लो, हैंड में है. नो डाउट्स. बीच में कुछ लोग हैंड रेज कर रहे थे, ये हैंड रेज वाली ऑप्शन कहाँ है, पहले मुझे ये बताओ. आई डिड नॉट सी इट. कहाँ से हैंड रेज कर रहे हैं? पार्टिसिपेंट्स में जाके में हैंड रेज की ऑप्शन है. यस सर. पार्टिसिपेंट्स खोला मैंने. अच्छा, मेरे वाले में तो नहीं दिखा रहा, सिर्फ नेम्स दिखा रहा है, नीचे म्यूट ऑल, अनम्यूट ऑल. सर मोर पे ऑप्शन है.
मोर में 3 dots. नहीं, मेरे पास मोर में भी नहीं आ रहा। अच्छा, वो पार्टिसिपेंट्स के लिए होगा, फिर होस्ट के लिए नहीं होगा। आप होस्ट होना सर, इसलिए नहीं आ रहा। ओके, ओके, एनी डाउट्स एनीवन? बीच में बहुत से लोग हैंड रेज कर रहे थे, अब डाउट्स क्यों नहीं आ रहे? Nothing? So shall we wind up the session? Yes, sir. Sir, we have to write in the register. Yes, yes. आपको मैंने बताया था, जो नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं, आपको लिंक भेजा था, वो सारे आपको नोटबुक में लिखने हैं। जैसे जैसे जो होता जा रहा है, एटलीस्ट वो साथ साथ करते जाओ। Okay, thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. And if still any doubts, you can ask me in the WhatsApp group. Thank you. Okay, sir. थैंक यू सर।